अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, all clear. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तिलावत कुरान पाक करीम की बरकत नाम से। तिलावत के लिए जो है वो मैं मिस्टर अब्दुल समद को बोलूंगी कि वो तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम dear all participants and researchers. I am Afshin Tariq, working as in charge Plastic Subcenter Karachi. I am welcoming to all of you for today's webinar on CPEC opportunities for researchers. I am starting with the introduction of Pakistan Scientific and Technological Information Center, PASTIC, functioning as subsidiary organization of Pakistan Science Foundation under Ministry of Science and Technology. PASTIC is the premier organization in the field of SNT information and is serving thousands of researchers and other professionals through its specialized information services. PASTIC National Center, having its headquarters in the premises of Quaid-e-Azam University Campus, Islamabad, with a strong network of 6 sub-centers across Pakistan, located at Karachi, Lahore, Faisalabad, Peshawar, Muzaffarabad, and Quetta. Presently, PASTIC provides a broad spectrum of services such as PASTIC supply full text research papers, S&T documents, bibliographic information services, patent information services. PASTIC published Pakistan Journal of Computer and Information System, Pakistan Science Abstract, Scientific Periodicals of Pakistan, Union Catalog in the name of PACCAT. PASTIC developed 24 new online national indigenous S&T databases such as National Science Search Engine, Scientist Directory, R&D projects, COVID S&T Information Portal, SARC SME Portal, etc. PASTIC promoting university industry collaborations for research-based industrial development by organizing technology exhibitions and seminars. PASTIC organizing workshops, seminars, training like EndNote, data mining, SPSS, Mendeley, plagiarism, POHA, and so many others for young researchers, librarian professionals, and entrepreneurs. Recently, PASTIC signed MOU with HEC and Pakistan Innovation and Testing Center to promote research culture. For further information, please visit our website www.pastic.gov.pk. Now, I would like to introduce our resource person, Dr. Samia Tasneem, CEO, Pakistan Education and Health Consultant Group, consultant microbiologist, consultant trainer, Center Innovation and Transformation and Research, University of Karachi, and also working in FAST University of Karachi.
Her PhD is from University of Karachi. Now I would like to request Dr. Samia Tasleem to conduct the session. Assalamualaikum Afshin, Assalamualaikum everyone. Thank you PASTEC and Pakistan Science Foundation give me opportunity to talk very important topic. It is the future of Pakistan. If the researcher focus these opportunity to get the better output for research and innovation development. Afshin, can you allow me share the screen? Yes, please share your screen, Samia. Afshin, my screen is here. You can visible. GG visible. So any foreign students attend this session, or only Pakistani students attend this workshop? कुछ have international participants भी हैं हमारे पास. Bismillahirrahmanirrahim. We start our session. The topic of our presentation is CPAC, opportunity for the researchers. What is a CPAC? Is a Japan-China collaboration for economic development of Asia. It is a corridor developed to the strengthen to the this sector. This map shows to the lot of activities start to the transportation for your innovative product, your developing product throughout the Asia and Europe countries by the common and CPAC channels. CPEX means is the China-Pakistan economic corridors. Corridors means you can transport your product to the one place to another place by this route. What are initiative in CPEX? The CPEX provide the clean energy, development your structure, the water-free zone, improving railway system, and develop special economic zones. In March 2021, the HEC offered the research grant for CPAC collaboration research grant. It is also come in next year, so you can focus, develop some project about the CPEX. You can plan out and develop the new products and new approaches regarding these projects. The CPEC start from the China and through the railway tracks and the road tracks comes to the Gwadar, and Gwadar, after the Gwadar, we develop the special transportation zone for the transport your product all over the world. CPEX also developed the G3 Park China Economic Corridor by the construction new railway tracks. In CPEC, councils develop the certain sector in power and highway routes. In power project we do, in this project develop coal technology, hydro technology, solar and wind technology for a power generation project. In highway, in this project we develop the new highways for the transportation and different type of goods. In this project, in CPEC, the main aim of these CPECs to strengthen the power for the common person economy status and residential status. These slides shows the
different projects starting through the under the CPEX to assist the what different projects is operating, and to develop the researcher develop the project regarding these project how can help to these projects. And it is also opportunity to the new entrepreneurs to start the new business regarding these upcoming opportunities. In energy sector, the new fuel generating technology drive to the formulate new fuel generation technologies like coal, solar, hydro, and wind. The certain new sectors develop in start last 5 years. Investment of CPEX projects is highly investable project. The energy sector, lot of investment coming, and structure development, industry, and Gawada development as a seaport. So a lot of investment comes in these projects. World top exporters come in this zone in Saudi Arabia, Oman, Iraq, Iran, Kuwait, and UAE, and rest of world coming to the invest this scenario. The CPEC, you have the certain opportunity for the CPECs for the logistic and supply chain, employment, labor, innovation and technology, international trade, foreign district, direct investment, and stability. CPEC also support the sustainable developing goals that are offered by United Nations to strengthen the power of a normal person. The CPEC opportunity is divided by two groups, is one energy and one transport. To the pipeline of transport, oil and gas, develop Iran, Pakistan gas pipeline is also working. Coal and wind, solar and hydro energy plant are installed. Railway tracks and highways and different Gwadar port are established. So it is a large billion investment. These maps shows a lot of countries are seen to the in future regarding these projects. The building of indirect investment in Russia, Pakistan, Egypt, Bangladesh, Kazakhstan, Kenya also shared the investment and future plan to get benefit of these opportunities. In CPECs have certain policies, the honest leadership, sustainable development, improve structure, CPECs, revenue generation, environmental stability, economic stability, and environmental sustainability. It is also improvement in community project leader and government. It is also community support for CPEC, facilitated project leaders, daily labor, environment protection, focusing pure community, poor community, develop area and cultures. The government also provide the financial and employment and equal opportunity, special entrepreneur programs for women development and women in entrepreneurship improvement. These are certain sector for government focus in CPECs technology, like first in focus in livestock and sheep and goat farming and dairy product, aquaculture and marine fishing, cereal production, vegetable and fresh fruit processing, poultry feed, food fresh and dry processing, sugar cane, molasses, cut flour production, herbs and spices, animal feed, tobacco industries, animal skin processing, seed production, pulses, cotton processing,
um, uh, cotton processing, wool cleaning processing, plant nurseries product, vegetable oil, essential oil, olive oil production and processing, and honey production. The impact of importance of Pakistan, these projects, the strategy of economic trade route, development of infrastructure, connectivity to the province, development of FATA, KPK and Balochistan, employment and equality among the province. The opportunities of China, easy to accessibility, Middle East, Afghanistan, export goods and defense trade, Middle East, Afghanistan and Central Asia. In CPEC's progress, the development of different under planning projects and under construction projects. So we have the time to the 50% budget is remaining to the plan to the new technology. The certain new provincial projects enlisted to the start in under these CPEC programs. The summary of China-Pakistan economic corridor major projects is the distribution of funds, direct investment, and direct job opportunities. This is the official website of CPEC Government Pakistan Progress Update. You also study these. The lot of new upcoming projects start under these forum. The tracking of progress, CPEC's project progress. Certain are completed, under construction, pipeline stated, announced, delay, and you can get opportunity to the delay project and upcoming starting project. Thank you for listening this short presentation. If you have the certain question, we will answer you. And in this opportunity, we focus to start the certain new project, our government focus of government focus to develop the new industrial zone and new technologies. So I can very appreciate to the FASTEC give me opportunity, and we provide the platform to start the new entrepreneurship programs in collaboration of FASTEC and Pakistan Science Foundation. The researcher help to the development for these technologies dependent businesses to fulfill the different to strengthen the different business community. The session open to the question and answer. ये पार्टिसिपेंट्स आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप डॉक्टर समिया से पूछ सकते हैं सीपैक से रिलेटेड. Samia, how can benefit from CPEC project? In CPEC projects, the different government offer the new entrepreneurship sectors. So the student have opportunities to develop these area, new products and value-added products of these sectors. New research plan is focused from this scenario, so you can easily collaborate these CPEC projects. हमारे यंग रिसर्चर्स जो है इस प्रोजेक्ट से कैसे फायदा उठा सकते हैं, मतलब कोई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ये CPECs की जितनी लिस्ट है जो मैंने आपको इस वक्त लिस्ट जो इस वक्त फोकस हुई हुई है, इसमें लाइफ स्टॉक और शिप एंड गोट फार्मिंग है. तो साइंटिस्ट जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट कैसे बनाएं जो लाइफ स्टॉक कैन इम्प्रूव द लाइफ स्टॉक एंड शिप एंड गोट फार्मिंग, और हाउ कैन इंक्रीज द डेयरी प्रोडक्शन, और इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या बन सकती हैं.
ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रेंथन करें बिजनेस कम्युनिटीज़ को, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप करें और अपना पार्ट बने R&D सेक्टर में इन दीज टेक्नोलॉजीज के अंदर जो गवर्नमेंट ने फोकस करके लिस्टेड की। ठीक है। अगेन एक पार्टिसिपेंट। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है। जी जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि आपने जो लिस्ट शेयर की है प्रोजेक्ट की, ये प्रायोरिटी वाइज है या रैंडम है? ये लिस्टेड हुई भी है गवर्नमेंट की तरफ से ना, इसी तरह हमें मिली है। तो जैसे आप कह रही हैं कि लाइव स्टॉक और जो गोट फार्मिंग ये सब चीजें ये प्रायोरिटी 1 है। जी 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 बहुत शुक्रिया। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन? एक नहीं क्वेश्चन। अब देखिए इसमें सीरियल्स और प्रोडक्ट, सीरियल एंड प्रोडक्ट्स हैं, तो इससे रिलेटेड जो सीरियल्स से बनना, इसकी फार्मिंग में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, इसकी प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर ये जब सीरियल्स की प्रोडक्शन हासिल हो गई तो इसके कौन से फूड ऐसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसको इंटरनेशनल मार्केट के लिए कैसे तैयार किया जाए, वो कौन कौन से टेस्टिंग मेथड्स हैं जो अडॉप्ट किया जाए जिससे हमारी जो लोकल चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट के लिए बन जाए, क्योंकि सीपेक्स प्रोवाइड द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। तो हम इस चीज़ों को कैसे वैल्यू एडिट करें, कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे स्टैंडर्डाइज करें, जिसको हम एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करके अपने सेक्टर के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ रिसर्चर इन सीपेक प्रोजेक्ट? वही तो मैं बता रही हूँ ना कि ये जो लिस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप कोलैबोरेट हों, यानी आपकी अगर शुगर की प्रोडक्शन आपके यहाँ हो रही है तो इसमें जो चीज़ें हाउ कैन इम्प्रूव द शुगर कल्टीवेशन एरिया, और जब वो शुगर की में जो डिजीजेस हैं उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, उसकी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, और उसको हम एक्सपोर्ट के लिए कैसे मार्केट में पेश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें काम जो है ना रिसर्चर्स का है। R&D के बगैर कोई इंडस्ट्री जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मेरा ये सवाल है कि जब सीपेक को स्टार्ट किया गया 2013 में, तो उस वक्त इसकी जो वैल्यू थी वो 47 US डॉलर थी, बिलियन US डॉलर थी, जो अब बढ़ के 62 हो गई है बिलियन। तो ये जो इसकी बजट है, ये बजट क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइनाज गवर्नमेंट दोनों बहुत इक्वली इन्वेस्ट कर रही है? जी जी या फकत चाइना की गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है? और जब अगर चाइना की गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको रिटर्न बैक किस तरह से करेगी? इसकी कोई पॉलिसी वगैरह आपको देखिए ये पता हो तो आप सारी बताएं। इंफॉर्मेशन तो आप जो पाक चाइना कॉरिडोर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर स्ट्रेंथन होगी। इसमें जहाँ तक थोड़ा सा मुझे नॉलेज है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई हुई है, तो ये आप फोकस रखें कि जो है ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कि आप किस तरह से इसका पार्ट्स बन सकते हैं। और आप ये जो चैनल आ रहे हैं ना, जैसे ये दरिया बैर है, तो इस दरिया में आप अपना इनपुट कैसे डाल सकते हैं और इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसे कि आप पोल्ट्री और फीड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो फीड डेवलपमेंट में कैसी इनोवेशन प्रोडक्शन ला सकते हैं कि पोल्ट्री की जो लाइफ है, वो जो पोल्ट्री की डिजीज़ है वो मिनिमाइज हो, पोल्ट्री की क्वालिटी अच्छी हो ताकि वो एक्सपोर्ट के लिए हाई रेट पे सेल हो। फीड है, फीड में कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे उसकी जो मीट कंटेंट है वो इंक्रीज हो सके और जो उसकी डिजीज़ है वो मिनिमाइज हो सके। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी हेलो जी 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 आवाज जी आ आपकी रही है आवाज़ दरबार आ साहब? रही है। जी, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। जो सीपेक है उसका जो मेन रूट्स है वो मतलब इनिशिएट वहाँ जीबी से ही है, मतलब पंजाब से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हर्ब्स है, प्लांट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से मतलब बायोलॉजिकल साइंस के हवाले से, बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, या इसमें केमिस्ट्री के स्टूडेंट इस हवाले से क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं थ्रू सीपेक जीबी के लिए?
देखें, आप सबसे जो है आपके पास हर्ब्स हैं, तो आप दो तरह से काम कर सकते हैं। या तो हर्ब्स को आप ड्राई हर्ब्स जो है वो डेवलप करके वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल सेल्स कर सकते हैं, उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। या आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो उसमें से आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर आप ड्रग की तरफ जाना चाहते हैं तो पूरा आप उसका केमिकल एनालिसिस, फाइटोकेमिकल एनालिसिस करके और उसकी कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के वो सेल कर सकते हैं। उसको स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में भी सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो हैं उसको एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे भी सेल्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज अब जो है वो स्ट्रेंथन हो गई है। जी मैम, वो तो है, वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, लेकिन मसले वहाँ पे है कि वहाँ कोई अच्छे इदारे नहीं है, लैब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं ना। देखें, HEC गिव या प्लेटफॉर्म टू द कोलैबोरेट टू द दोस एरियाज या दोस इंस्टीट्यूट दोस हैव द अपॉर्चुनिटीज। आप वहाँ से कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ एक प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं कि हमारे पास जो है रॉ मटेरियल्स हैं, हम आपके पास आएंगे, हम आप हमें टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जो है वो फैसिलिटीज दिएगा, और ज्वाइंट प्रोजेक्ट जो है इस तरह से बनकर आपकी प्रोडक्ट जो है कमर्शलाइज हो सकती है। जी वो तो है मैम, हर किसी के एक्सेस में नहीं होता ना HEC के या HSC के जो भी प्लेटफॉर्म है। अगर पेस्ट्री के काफ़ी मैंने सेशन अटेंड किया, तो मैं अगर वहाँ पे विजिट करवाऊँ या रॉ मटेरियल वहाँ से भेज दूँ, हाँ, या आप आप लोगों उसको को थ्रू साइट वगैरह कोरियर भी भेज कितने सकते हैं। आप अपना जो है ना प्रोडक्ट को थ्रू कोरियर भी भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको कोरियर से भी रिस्पांस आ जाएगा। मेरे ख्याल से HEC और ICCPS या और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और ये पाकिस्तान टेक्नोलॉजी जो के इदारे हैं, ये आपको थ्रू कोरियर भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वो रिजल्ट भेज देते हैं। आप उनको अगर सैंपल्स कोरियर कर दें तो आपको रिजल्ट जो है ना ईमेल या कोरियर के थ्रू भेज देंगे, या जो सर्टिफिकेशन चाहते हैं वो आपको करवा के दे देंगे। और यूनिवर्सिटी के साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर देगी। मैम मुझे फिर एक मेंटर चाहिए जो इस चीज़ को लीड करे, आप लेकिन मुझसे जो है ना आप अफीन के थ्रू जो है ना मुझसे कोऑर्डिनेट कर दिएगा, तो मैं आपको जो भी चीज़ें फैसिलिटेट कर सकी वो मैं कर दूँ। कैसे मैम? हाँ आप अफीन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर दिएगा, मुझे मेल कर दिएगा, मैं जो भी कर सकी फैसिलिटेट आपको कर दूँगी। सामिया, आप इंशाल्लाह, अपनी थैंक सो मच। प्रेजेंटेशन और अपनी ईमेल जो है ना वो चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारी जो अटेंड कर रहे हैं वो अगर ये प्रेजेंटेशन मैं प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करूंगी ना अफशीन, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें मेरा ईमेल भी एड्रेस है। ठीक है वो आप दे दीजिएगा, तो ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास अटेंड किए हैं उन सबको मैं प्रेजेंटेशन ईमेल कर दूंगी। अच्छा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप चैट बॉक्स में देख लें, वन बाय वन फिर उसको जो है वो देख लेते हैं। देखिए, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, हर एक प्रोडक्ट जो है ना उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। अगर आप सिर्फ गॉट फार्मिंग और एनिमल प्रोडक्शन में जाएं या फिशरीज और मैरीन्स में जाएं, जो कितनी मैरीन प्रोडक्ट्स जो है ना मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। तो आप जो है उन मैरीन प्रोडक्ट की कल्टीवेशन करके जो पाउंड की में कल्टीवेशन करें या आर्टिफिशियल या नेचुरल कल्टीवेट करके उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी सेल आउट कर सकती हैं। लेकिन यू आर द साइंटिस्ट, यू आर रिसर्चर्स, तो आप ऐसे तो नहीं कि वहाँ से आपने कल्टीवेट किया और उसको पैक किया, उसको भेज दिया। आपको सर्टेन जो है ना स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, उसकी एक वैल्यू एडिड चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उसको साइंटिफिक वे में आप सेल आउट करेंगे। तो इस तरह से जो उसकी प्राइस है वो भी इंक्रीज होती है, और जो इंटरनेशनल कस्टमर है उसका एक जो है ना आपके पास एक ट्रस्ट डेवलप होता है। और इसी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स या इसी जो आपकी एनिमल प्रोडक्ट या जो लिस्टेड प्रोडक्ट हैं, इससे सर्टेन प्रोडक्ट्स भी बनती हैं जो आपको एक हाई, जैसे कि ₹1 की चीज़ को आप एक अगर वैल्यू एडिट करके सेल करें तो वो ₹100 में भी सेल हो सकती है। तो ये थोड़ी सी रिसर्चर्स को अपने इस एक्टिविटीज़ में ग्रूम करना पड़ेगा और फिर उसको वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द रिसर्चर्स के लिए to the strengthen your activities.
अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये इस अपॉर्चुनिटी से जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट ये कैसे बेनिफिट ले सकते हैं सीपैक अपॉर्चुनिटी से? देखिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो क्योंकि ये सारी एनवायरमेंट चीजें ट्रांसपोर्टेशन है एनवायरमेंट के स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं। जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि आफ्टर द कोविड द इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर माइक्रोबायोलॉजी के सारे आपको जो है इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। तो उसमें माइक्रोबियल टेस्टिंग और माइक्रोबियल जो प्रोसीजर्स हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड, तो यहाँ पे रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट का आ सकता है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसी सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं जो इन चीज़ों के लिए में इम्पॉर्टेंट हो और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे क्वारंटाइन सेंटर्स बना सकते हैं, उसकी टेस्टिंग सर्विस कर सकते हैं, इस तरह की ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं कि वो सेफली जो प्रोडक्ट को जो है ट्रांसपोर्ट कर सके। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप थोड़ा सा जहन को शार्प करें तो आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसमें आपने नेचुरल इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना है। लेकिन जितने एनर्जी के प्रोजेक्ट लग रहे हैं वो सेफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स भी आते हैं। आप जैसे कोल प्रोडक्शन की जहाँ भी आपकी एनर्जी के सोर्सेज लगे हुए हैं वहाँ पे आप मॉनिटरिंग सेंटर्स बना सकते हैं कि क्या कोल प्रोडक्शन जो से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये इन्वायरमेंटल को तो डैमेज नहीं कर रही, और आफ्टर बिफोर इफेक्ट्स क्या हुए हैं इन न्यू इंडस्ट्रीज के लगने से, और कम्युनिटी में क्या उनकी डिजीजेस बढ़ी हैं जो पहले थी और आखिर में थी। अच्छा, फार्मासिस्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं एज ए मेडिसिनल न्यू मेडिसिन को डेवलप करके उसको स्ट्रेंथन करके वो भी सेल कर सकते हैं, और जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको नेचुरल प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के भी सेल्स में आ सकते हैं। इसके अलावा उन रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्ट्स बना के उसको स्टैंडर्डाइज करके वो भी सेल्स कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट के बायोटेक्नोलॉजी देखें, ये डिफरेंट इकोनॉमिक जोन्स भी डेवलप हो रहे हैं सीपेक्स में, तो डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी न्यू इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं। जैसे इस्लामाबाद में गजदार के साइट पर कुछ न्यू बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज लगी हैं, उसमें जो बायोटेक्नोलॉजीज का यूज़ होकर जो प्रोटीन एंजाइम्स और डिफरेंट चीज़ें बन सकती हैं वो चीज़ें जो है ना आप बना सकते हैं। पहले तो बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज नहीं थी हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी से आप इंसुलिन की प्रोडक्शन भी हो सकती है, एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं, एंजाइम्स भी बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, सीपैक की वजह से पाकिस्तान की एनवायरनमेंट पे कितना असर पड़ेगा? लेकिन ये तो आफ्टर द सीपेक्स जब खत्म होगा, जब एनालिसिस होगा, लेकिन आप कोई स्टडी प्लान बना सकते हैं कि बिफोर सीपेक स्टार्ट पाकिस्तान की कम्युनिटीज की क्या कंडीशन थी और सीपेक्स के बाद क्या है। तो एक ये स्टडी प्रोजेक्ट्स है, ये कोई भी स्टूडेंट्स जो है करना चाहे इंटरेस्टेड हो तो वो ये डिज़ाइन करके इस पे स्टडी कर सकता है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है वो इंडिविजुअली सीपैक के प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करके वो उससे फंडिंग ले सकते हैं, मतलब उसके लिए स्टूडेंट को क्या वो गाइड? देखें, साइंस फाउंडेशन जो है वो टू टाइप से प्रोजेक्ट्स की फंडिंग देता है। या तो आप स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड हो, वो अपना एमफिल पीएचडी प्रोग्राम कर रहे हों और उसमें वो एक प्रोजेक्ट लिखें जो साइंस फाउंडेशन में सबमिट करें और वहाँ से उनको रिसर्च ग्रांट हो, उसी पे वो एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम भी करें। और सेकंड अपॉर्चुनिटी होता है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ वर्क कर रही हैं पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स में, तो वो उन सोसाइटी के थ्रू भी वो प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। इसमें आप पोस्ट डॉक स्टडी भी कर सकते हैं या ऐसी सिंपल रिसर्च भी कर सकते हैं उन सोसाइटीज़ के साथ। एक क्वेश्चन है, हाउ वी कैन गेट बेनिफिट एज अ सॉइल साइंस रिसर्चर फॉर सीपैक? लेकिन ये सारा काम मिनरल डेवलपमेंट का इन सीपेक्स में है कि सीपेक्स में मिनरल डेवलपमेंट का काम है, और मिनरल डेवलपमेंट की एनालिसिस सॉइल एनालिसिस से होती है, और एग्रो बिजनेस के जितने भी प्रोजेक्ट हैं बिफोर सॉइल एनालिसिस ही प्लान होते हैं कि किस फील्ड में आपने क्या प्रोडक्शन करनी है। तो
सॉइल साइंटिस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रोजेक्ट्स के अंदर। How can GIS specialists play their role in CPEC? GIS सिस्टम्स ना दो तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। जैसे GIS सिस्टम आप एपिडेमियोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग ऑफ हर्ब्स में भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा जितने मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए अलग बना सकते हैं। तो जितनी भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको GIS के थ्रू ट्रैक भी कर सकते हैं। और आप इसके साथ जो है ना किसी इंडस्ट्री के साथ मिलके स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो आप GIS एक टूल है, आप उस टूल को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये रिसर्चर्स पे डिपेंड होता है। रिसर्चर्स इज क्या नाम है, आप लोगों के और कोई सवाल है? ओपन डिस्कशन है, अभी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने इश्यूज। आप इसके साथ ये है कि आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आपके पास कोई आइडिया है या प्रोजेक्ट है तो वो मैं उस प्रोजेक्ट को आपको उसके हिसाब से मोल्ड करके आपको वो मैं ईमेल के थ्रू भी आंसर कर दूंगी कि आप किस टाइप का, जो लोग नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं फॉर सर्टेन स्टडीज के लिए तो वो CPEC ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बनाए तो आपकी जो आगे पेपर्स में भी और आगे जो फ्यूचर रिसर्च प्रोजेक्ट्स की कैरियर है उसमें भी ये स्ट्रेंथन रोल प्ले करेगा। मैम मेरा एक सवाल था, जी जी बोले सर। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या CPEC जो है पाकिस्तान और चाइना का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसकी कंप्लीशन के बाद पाकिस्तान का ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो ये कि सबको पता है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव है चाइना गवर्नमेंट का जिसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान का इसके बाद क्या लेवल होगा? और अगर जैसे जो वर्ल्ड पावर हैं USA वगैरह वो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो हमें इसके आप मुझे प्रोस बताएं और कॉन्स बताएं। थैंक यू सो मच। ये तो आफ्टर एक पूरा स्टडी प्लान होगा, ये आप खुद स्टडी करेंगे कि और ये स्टडी जो है आफ्टर तक ये CPEC प्रोजेक्ट कंप्लीशन के वक्त की जाएगी कि इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज थी, कितने लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और क्या क्या प्रॉब्लम्स में आई। तो ये तो आफ्टर द ये CPEC प्रोजेक्ट एंड होगा उसके बाद ये स्टडीज होगी कि ये किस तरह से जा रहा है। वरना इसके साथ जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है वो इन सारे इश्यूज को डिस्कस करता है डेली, उसकी जो वीकली मीटिंग्स होती हैं वो उन सारे सिनेरियो को देख रहा होता है क्योंकि ये जो हमारा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ये हर वक्त चेंज होता रहता है। पहले इंडिया को जो है CPEC में इंटरेस्ट नहीं था, फिर उसके बाद उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया क्योंकि उनको भी मिडिल ईस्ट और जो यूरोपियन एरिया में जो है अपनी गुड को एक्सपोर्ट करने का एक पाथवे मिल गया, लैंड पाथवे जो सेफ है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, उसके इम्पैक्ट्स जो है ना वो डेवलप होते रहते हैं। ठीक है मैम आप मुझे एरियाज बता दें, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया इंडिया का। आपका सब्जेक्ट्स क्या है? मैम ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी तैयारी के लिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। तो ये देखिए ना इसके आपके डिफरेंट इम्पैक्ट है, ये आप खुद स्टडी कर सकती हैं कि ईरान को क्या इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, इसका अफगानिस्तान से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो ये आप खुद स्टडीज प्लान कर सकती हैं, या डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट चीज़ें आती हैं तो उसको स्टडी करें। तो डिफरेंट इसके जो की एक्सपर्ट्स हैं वो क्या लिख रहे हैं इसके फ्यूचर के बारे में उसको स्टडीज करें। तो ये चीजें नॉलेज आप वहां से गैदर करेंगे। ठीक है, एक सवाल है, व्हाट अबाउट CPEC रोल इन इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान? देखिए इससे डिफरेंट जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है, न्यू बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं और एनर्जी की जो शॉर्टेज थी वो ओवरकम हो रही है। तो जब एनर्जी की शॉर्टेज ओवरकम होती है तो बहुत सी चीज़ें जो है ना ड्राइव होती हैं। तो कॉमन जो पर्सन है उनका लाइफ की जो लेवल है वो इम्प्रूव हो रहा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और जो सेक्टर जो था वो जो अंडर डेवलप था वो डेवलप हो रहा है। जैसे KP के बलूचिस्तान और जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर अंडर डेवलप थे, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और
इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी नहीं थी, जो अब सीपेक के साथ जो है ना वो बहुत फास्ट हो गई है। Why we are ये जबरान जी जी ये एक साहब हैं, ये इनका माइक ये हाँ है, अनम्यूट चाहते हैं। जी जी Assalamu alaikum. Is there any opportunity for soil science researcher in CPEC? जी जी, सीपेक्स में साइंस के रिसर्चर न्यू टेक्नोलॉजी न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं और उसके पे इन्वायरमेंटल स्टडीज कर सकते हैं। उसके आप डिफरेंट एस्पेक्ट पे आप स्टडी प्लान कर सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पे क्या इफेक्ट्स डाल रहे हैं, कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, लोगों के हालात पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है और लोगों के हेल्थ स्टेटस क्या इम्प्रूव हुए हैं, किस तरह से उन्होंने इफेक्ट किया है। ये सब साइंस स्टडी और रिसर्चेस का काम। Okay. अच्छा, इसमें और सवाल है। जॉब प्रोजेक्ट बेस्ड इन सीपेक और देयर कैन बी परमिट जी जॉब। जी, सीपेक्स जो है वो डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी करे। जो जैसे इंडस्ट्रियल जोन में न्यू न्यू इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो जॉब प्लेसमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज वहीं से जो है ना वो डेवलप होंगी। आप अपने जो है एसईपी सेक्टर्स में भी डेवलप कर सकते हैं। सीपेक्स के जो रिसर्चर्स हैं वो अपना कोई बिजनेस प्लान बना के एसएमई सेक्टर में, जो समेटा जो बिजनेस का जो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, तो उधर न्यू बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते या आपको कोई बिजनेस प्लान आपके साथ है तो आप उनसे शेयर करके, या कोई प्रोडक्ट डेवलप हो गई है तो समेडा के थ्रू और डिफरेंट जो एसएमईज डेवलपमेंट कंपनीज हैं उनके थ्रू आप वो अपना बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पे आप न्यू इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर सकते हैं ठीक है। और जॉब अपॉर्चुनिटी आप दूसरों को भी दे सकते हैं। एक सवाल है, why we are becoming totally dependent on CPEC? हम सीपेक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। हम पहले अपनी ग्रोथ के हिसाब से ट्रैवलिंग कर रहे थे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। जब हमें एक अपॉर्चुनिटीज आई और हमें एक गेटवे मिला एक्सपोर्ट के लिए फास्ट गेटवे मिला और स्ट्रक्चरिंग हुई, तो हमने उस जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हम उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के अपने आप को फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम नॉर्मल तरीके से डेवलप करते तो ये हमारा 5 ईयर टू 10 ईयर टू 20 ईयर्स के प्लान थे कि हम जिस स्पीड से डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन आफ्टर द सीपेक्स में जब इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और आपको एक गवादर पोर्ट के थ्रू जो है आपको सेंट्रल एशिया और जो है यूरोप और दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी भी मिली है, तो वहाँ तो आप उसमें उसको फ़ायदा उठा के आप अपने आप को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। और पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी। जब न्यू इकोनॉमिक जोन बने, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए तो न्यू जॉब्स भी आई। तो जो लोग अपने जॉब्स को इन स्किल्स के हिसाब से ट्रेन कर लेगा तो वहाँ पे वो अपने आप को ज़्यादा फायदेमंद बना लेगा उस प्रोजेक्ट के लिहाज से। और किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई सवाल? आप लोग अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, ओपनली अपने आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब अफशीन ये एक साहब हैं जिनका हैंड रेस हुआ हुआ है, वो अनम्यूट कर दें। जी सामिया, आप किसकी बात कर रही है? ये किस साहब का हैंड रेस हुआ हुआ है। ठीक है, वो अगर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, लाइब्रेरियंस के लिए सीपेक का क्या बेनिफिट है? एक ने सवाल किया लाइब्रेरियन ने।
लेकिन जब मैं जिन इंडस्ट्रीज में वर्क किया है उस हर इंडस्ट्रीज में जब कोई इंडस्ट्रियल जोन बनता है तो वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनते हैं और उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरीज भी बनती हैं। वो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी अपने इंडस्ट्री के अंदर एक लाइब्रेरी का सेक्शन रखते हैं ताकि जो भी उनको रिटन मटेरियल या रिसर्च मटेरियल या बुक्स की ज़रूरत हो तो वो लाइब्रेरी से जो है वो हासिल करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। तो लाइब्रेरियंस का जो अपॉर्चुनिटी है या लाइब्रेरियन का जो वो है वो कम नहीं होगा, वो हर जगह जो है उनका इस्तेमाल होता है फॉर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अब वो लाइब्रेरियन खुद भी सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं देखें, वो खुद भी अपनी जो है इंटरप्रेन्योरल स्किल्स को यूज करते हुए शॉर्ट लाइब्रेरी या मोबाइल लाइब्रेरी या अब तो बस ऑक्सफोर्ड बस लाइब्रेरी भी बनाती है, तो इस टाइप की छोटी कार में भी वो लाइब्रेरी बना सकते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए खुद जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जी पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों के जो भी सवालात है वो तो आप लोगों डॉक्टर सामिया ने वो अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंड किया होगा और आपको समझ में आई होंगी कि सीपैक की जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे पाकिस्तान पे उसका क्या इम्पैक्ट है और वो रिसर्चर्स जो है उससे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। जी मुमताज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं पीएचडी के बारे में डॉक्टर समिया से पूछना चाह रहा था कि डिफरेंट कंट्रीज से जो स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं हमारे पास पाकिस्तान में पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो इसके लिए चाइना के अलावा कौन से कंट्री जैसे कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, तो इसमें कौन से कंट्री से स्कॉलरशिप इजीली मिलता है और कौन सा ज़्यादा वैलिड होगा, ज़्यादा अच्छा होगा? लेकिन ये स्कॉलरशिप्स जो है ना ये डिफरेंट फील्ड है। ये अगर आप पाकिस्तान के रह के सीपेक्स के थ्रू पे काम करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में भी जो है वो फेलोशिप्स मिलती हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं जैसे साइंस फाउंडेशन फेलोशिप देती है, HEC फेलोशिप्स देती है। अगर आप इनके साथ प्रोजेक्ट्स लेके काम करें तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनस्बत कि आप दूसरे ममालिक में जाके और सीपेक्स का इम्पैक्ट जो है दूसरे ममालिक में नहीं होगा, क्योंकि जैसे जापान और कोरिया है तो वो इतना सीपेक्स का पार्ट ही नहीं है। तो वो आप स्कॉलरशिप लेंगे तो वो आपको अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट के लिए देंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रह के डिफरेंट पाकिस्तान के डिपेंडेंट स्कॉलरशिप्स लेते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। और आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो ना सिर्फ जर्मनी, जापान और कोरिया के लिए बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए एक ही है। तो पाकिस्तान में क्योंकि डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी पीछे है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। तो आप लोग फोकस करें कि यहाँ पे रह के स्कॉलरशिप लेकर और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को रन करें और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को ड्राइव करें, क्योंकि आप जब एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्राइव करते हैं और उसको इनोवेशन को रजिस्टर करते हैं तो वो आपका जो है जो GDP में इम्प्रूवमेंट का सबब बनता है। मेरा क्वेश्चन सीपैक के हवाले से नहीं है डॉक्टर समिया, मेरा क्वेश्चन ओवरऑल, जैसे अगर ऐसे ही बंदा बाहर जाना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए तो उसके हिसाब से कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं कर देखिए रहा मैं, माइक्रोबायोलॉजी इस वक्त टॉपिक जो है ना वो सीपैक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्चर है, ये आउट ऑफ लेवल जा रहा है। सीपैक में माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च या प्रोजेक्ट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज है भी या? जी हाँ, सीपैक्स के साथ जब पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगा तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज की भी ज़रूरत है और आफ्टर कोविड आपको माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर आप फूड है या एग्रीकल्चर है किसी में भी आप जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। न्यू अगर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे फार्मा इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो वहाँ पे एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंट जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटीज निकल रही है।
अस्सलाम वालेकुम Okay, मैडम। thank you. मेरा नाम अब्दुल गफार है। मैं जो एमफिल कर रहा हूँ उसका जो टॉपिक है वो है चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस 2013 से लेकर 2018 तक। तो अभी ये मैं इसी टॉपिक में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि मैं साइंस फाउंडेशन या किसी और इदारे के साथ कोलैबोरेशन में फंड या स्कॉलरशिप वगैरह उनसे ले सकता हूँ, या उनका जो तरीक़ेकार है वो किस तरह से है? आपके साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। लेकिन साइंस फाउंडेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं। लेकिन जो HEC का प्लान है, HEC में डिफरेंट चैलेंज फंड आते हैं जिसमें वो सोशल साइंसेस के लोगों को भी स्ट्रेंथन करते हैं, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। साइंस फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके आप उनका क्राइटेरिया देख सकते हैं। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की वेबसाइट पे वो आपको फंडिंग प्रोजेक्ट के बारे में उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। जी शाहिद मसूद साहब। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं शाहिद साहब? नहीं वो जो है वो किसी की माइक जो है वो ओपन है। आपको ईमेल एड्रेस इंशाल्लाह मैं मेल कर दूंगी। जो आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स में दी है, और उसी ईमेल एड्रेस पे जो है आपको प्रेजेंटेशन, आपको सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। मगर मेक श्योर ये करना है कि आपने जो है अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स में दी है। जो स्टूडेंट्स अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस या ईमेल एड्रेसेस मेंशन नहीं करेंगे उनको तो सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे। आप काइंडली जो है अपनी प्रेजेंस जो है वो चैट बॉक्स में शो करें ताकि फिर हम उसको फर्दर प्रोसेस कर सकें। आप लोग अफशीन, ये जो अपकमिंग रिसर्चर्स हैं जो अपने अभी सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो इस CPEC से अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो अपने प्रोजेक्ट लिख चुके हैं, उसमें से कोई साइड एंगल ऐसे बना सकते हैं जो ये पार्ट भी स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में ज़्यादा काम है। हाँ, हमारे यहाँ यार समिया स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिक नॉलेज नहीं है उनको समझ नहीं आती कि वो अपना साइनॉप्सिस कैसे लिखें, अपनी थीसिस कैसे लिखें। बहुत सारे इश्यूज जो है रिसर्चर्स के चल रहे हैं। न्यू वो हम आपके साथ जो है ना मिलके सिनॉप्सिस की तो प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम वहाँ पे एक हेल्पिंग डेस्क के साथ भी कर सकते हैं। जो अपनी क्यूरीज है वो वहाँ पे जमा करा दें, तो एक वीक मंथ में एक दिन जो है हम सेटिंग कर लें और जो इंडिविजुअल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व कर लें, और उनको इनकी एक काउंसलिंग भी कर दें कि आप क्या क्या काम किस तरह से कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर में प्रोडक्ट में काम आएंगे। बिल्कुल। क्या अच्छा CPEC को जो है वो इंडस्ट्रीज जो कि अपॉर्चुनिटीज अपनी देती हैं, और CPEC प्रोजेक्ट में अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वो आपने जो कहा कि रिसर्चर्स जो है उससे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ बेनिफिट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है उसका इम्पैक्ट CPEC पे क्या है? देखिए, एनर्जी का तो पूरे स्पेशल आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो CPEC के हैं ना वो एनर्जी के ही हैं, जिसमें पहले पाकिस्तान में सिर्फ जो है ना हाइड्रो एनर्जी और फ्यूल एनर्जी थी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और कोल एनर्जी जो है वो आफ्टर CPEC ही पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है। तो आप इसके रिलेटेड कोई बायो एनर्जी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, कोई डिफरेंट एनर्जी पार्ट में भी काम कर सकते हैं, और एनर्जी जो प्रोडक्शन एरियाज है उनकी एफिकेसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इस पर भी काम हो सकता है, और उस एनर्जी की जो प्रोडक्शन हो रही है वो इस पे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट डाल रही है
जो वहाँ के ह्यूमन और जो एनिमल्स और जो लिविंग थिंग है उन पे क्या अफेक्ट कर रही है। ये बहुत से प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं क्योंकि इससे पहले तो कोल एनर्जी थी नहीं। चले इंशाल्लाह हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो इसके ऊपर आपसे असिस्टेंस लेंगे फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने के लिए। और आपका आज का जो सेशन है वो होप पार्टिसिपेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। पार्टिसिपेंट्स आप लोग अपना फीडबैक जो है वो चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि आज की वेबिनार या सीपैक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्चर्स जो टॉपिक है वो आपके लिए कितना बेनिफिट था, उसका फीडबैक भी आप हमें चैट बॉक्स में दें ताकि इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट और न्यू सजेशंस अपनी दें कि हम नेक्स्ट जो है वो वर्कशॉप्स जो है अपने रिसर्चर्स के लिए वो कौन सी ऑर्गेनाइज करें और आप लोगों की नीड्स क्या है, रिसर्च फील्ड में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है या यूनिवर्सिटी में आपको फंडिंग किस तरह से प्रोजेक्ट्स की लेनी है। वो तो आपको डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज हैं जो आपको फंडिंग देती हैं, उसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सबमिट कराने होते हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक दें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई सवाल ये सीपैक से रिलेटेड? क्वेश्चन आंसर सेशन में देख ली किसी और बातों। आप में से जो भी फैकल्टी के लोग हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर कोई वो अपना टॉपिक शेयर करना चाहते हैं जिसपे वो अपनी एक्सपर्टीज को जो है वो रिसर्चर्स में या उसमें उनको फ़ायदा दे सकती है, तो वो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं ताकि हम आपको एज अ रिसोर्स पर्सन भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं और आपकी जो भी रिसर्च एक्सपर्टीज हैं उससे जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उससे वो फ़ायदा ले सकें। अगर ऐसे कोई इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हो तो वो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। चले फिर अब लास्टली मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। सामिया, आई थिंक किसी और की कोई क्यूरीज नहीं है, हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सामिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो आज अपना टाइम निकाला और हमारे रिसर्चर्स और पार्टिसिपेंट्स को जो है वो सीपैक अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से डिस्कशन की, प्रेजेंटेशन दी। और आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस वेबिनार को अटेंड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग सून जो भी वर्कशॉप या वेबिनार होगा वो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, पाकिस्तान साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की वेबसाइट और उसका जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें। जो अपकमिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज या इवेंट्स होंगे उस पर हम अपडेट आप लोग अपडेट करेंगे उसमें। थैंक यू सो मच सामिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। और ऑल पार्टिसिपेंट्स आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अफशीन, पास और सारे जो स्टूडेंट्स इस सेशन में टाइम निकाल के आए और इस इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को सुना और इस पे थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग की, उनका शुक्रिया कि वो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। आई होप मैंने उसको समराइज करके बताने की कोशिश की है ताकि आपको एक बर्डन व्यू मिल जाए ताकि आप फ्यूचर पॉलिसीज और अपनी फ्यूचर कैरियर प्लान कर सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और जो भी आपकी क्यूरीज है वो आप अफशीन से कोऑर्डिनेट कर लें, तो फिर अफशीन के साथ हम मिलकर जो इंडिविजुअल आपकी क्यूरीज हैं वो सॉल्व कर लें इंशाल्लाह। क्योंकि हम पास्टिक का तो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तो एक तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है और दूसरा रिसर्चर्स को जो है फैसिलिटेट करना। लाइक डिफरेंट हमारी डोमेन्स हैं जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि डिफरेंट उस पे एक्सपेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान में जो है वो रिसर्च
कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जाए ताकि पाकिस्तान में न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो इनिशिएट हो सके और एक्सपोर्ट कम हो सके, तो एक्सपोर्ट बढ़ सके, इंपोर्ट कम हो सके। ओके पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम। बोले इमरान साहब, बोले। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है फिर हमें जीमेल पे? जी जी, रिकॉर्डिंग का लिंक जो है आपको मैं भेज दिया जाएगा सर्टिफिकेट और प्रेजेंटेशन के साथ, उसको आप चेक कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। इस प्लेटफॉर्म में जो लोग मिनरल डेवलपमेंट के सेक्टर्स में से हैं, तो मिनरल डेवलपमेंट के लिए भी स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो हैं डेवलप हो चुके हैं, तो उसमें भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जो लोग अपने फ्यूचर में बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं, तो वो भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द ओन बिजनेसेस। थैंक यू डॉक्टर समिया।